Okay, got it. Chalo, fine. Okay, welcome back. Good morning, good afternoon, good evening. Be it whatever time you're watching it, just make sure you watch it. Fine. And since you have started watching it, so make sure you have your copy in front of you. Acha, see, let's make one thing very clear that, see, once you watch the video, after that, you'll have to make a note, because every time you cannot watch the video. What will happen is, once you have watched the video, after that you will not watch the video when you revise. You will just refer to your notes whenever you have to revise, because the video will never be always with you, but what will remain with you is your notes. So whenever you want to revise, refer back, you'll always refer back to your notes. That's why I'm emphasizing on the notes on a regular basis. Fine. So now when it comes to note making, either you can do it as you watch the video, you can make the notes, or you watch the video but at least keep a rough rough copy in front of you, so that whenever we are doing any kind of numericals, especially numericals, so that numerical you can solve in your rough copy, and later on, with the help of the PDF that is provided to you, you can make your own fair note, which you will refer whenever the need arises. Fine. Fine, chalo badhiya. Okay, so all these things are not required. I'll remove all these things. So let's begin. No more panchayat. Let's start. Chalo. What we are studying is, we are studying the chapter current electricity. We are in the third episode. This is the third episode. Third episode. Acha, I'll just hide the video. It's better now. Chalo, it's better view. Now this is the third episode, and what we'll be talking about over here is, we'll talk about resistance and Ohm's law. Fine. Let's move further. Now see, we have already introduced ourselves to these picture. This picture should stick in your mind. ये पिक्चर आपके दिमाग में छप जाना चाहिए. पिक्चर में है क्या? यहाँ पर आपके पास, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. यहाँ पर आपके पास three quantities we have: current, potential, and resistance. Current we have studied in the first two videos. Fine. That flow of electron or flow of charge is current, but this current cannot flow on its own. It requires an external push or an agent. That external agent is the potential. ये potential जिसको current को लात मार के आगे बढ़ा रहा है. Now, these two quantities, current and potential, we have already discussed. Now, the only person remaining is the villain of the story. That is our resistance. Today, we'll talk about resistance. Fine. And once we have individually discussed about all these three things, then we can move on to the main plot of the story. Fine. Okay. Before we proceed any further, there are few certain things I'll just like to point out. Current का नोटेशन एंड यूनिट. करंट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, एंड यूनिट होता है एम्पियर. AMPERE, या फिर सिंपली कैपिटल ए. ये फैक्ट्स है. पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट होता है वोल्ट, VOLT, या फिर कैपिटल वी. एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, बट स्टिल फॉर द सेक आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू ऑल दैट रेजिस्टेंस वी रिप्रेजेंट बाय द लेटर कैपिटल आर, एंड द सिंबल, sorry, the unit is ohm. OHM. Om Namah Shivaya. Ohm. And the symbol is very tricky, like this. ऐसा है. Ohm. Understood? Tick, tick, tick. Ohm. This is a symbol. And
As we proceed further, we'll discuss about this in more detail. चलो fine, बहुत बढ़िया. Now, as you can see itself in this picture, कि रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस का काम है करंट को अपोज करना, करंट को रोकना. करंट wants to flow because potential is pushing it, but करंट का रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है, उसको अपोज कर रहा है, उसको जाने नहीं दे रहा है. As a result of which we say, we move to the definition of resistance. Now we come to the term resistance. When we talk about qualitative definition, कि इसका मतलब क्या है रेजिस्टेंस का, whenever we talk about resistance, what is the meaning of the word resistance? We are not trying to calculate it. मुझे अभी इसको calculate नहीं करना है. We just want to understand the characteristics, उसका खासियत क्या है. In that case, we say the obstruction offered to the flow of current by the conductor or wire is called resistance. Means the obstruction, the key word is obstruction. The obstruction offered to the flow of current is called simply resistance. Just try to understand this with the help of this picture. यहां पर हम लोग के पास electrons है. Now the voltage tries to push the electron and make the electron flow. We have electrons, the voltage pushes the electron and make them flow. The moment they begin to flow, we say current is formed. But this resistance, what is it doing? It is opposing the flow of electron. In other words, it is opposing the current. समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन्स है, वोल्टेज इसको मूव कराने का कोशिश कर रहा है, तो करंट फॉर्म होगा. बट ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस इज ट्राइंग टू oppose the motion, oppose the flow of electron, the flow of electron. अगर अनफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो करंट कहा गया है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज कैरियर्स को ही तो करंट कहा गया है. दो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वी आर नॉट वरीड अबाउट द डायरेक्शन. फाइन, चलो बढ़िया. इतना समझ में आया. रेजिस्टेंस मतलब क्या? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट. बस खत्म. ओके. नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कारण क्या है? कारण, रीजन, रीजन. For that, we'll have to recapitulate what we have discussed in the previous classes. Just recall the idea of free and bound electron. Now, we have understood that the electrons which are in the valence ring or the valence shell, the electrons which are in the valence shell or the outermost orbit, or the outermost orbit, these electrons are less bound to the nucleus. मतलब कि सिंस ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर है, सो इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बहुत वीक होगा. वीक होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन पे जो उसका फोर्स है वो काफी कम है. As a result of which we say that this electron is free, whereas the electrons which are present in the innermost orbit, those are termed as bound electrons. तो होता क्या है कि सिंस इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है, so this free electron has a tendency to come out of the atom, and once it comes out of the atom, it can move around, but it can move around only within the material of the conductor. Can come out, so move around, it can easily move around, but it can move around only within the material of the conductor. It cannot go outside, only within the material of conductor. ये बात समझ में आया? This we have already discussed. Fine. Okay. Now, ये तो था एक सिंगल एटम के लिए. बट व्हाट इफ वी हैव अ कलेक्शन ऑफ एटम? सो कैन वी से, अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ एटम है, तो ये एटम से ये सब इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है. अगर एटम से
इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा है, so the atom becomes these are termed as fixed positive ions. एटम्स एटम नहीं रहता है, क्या बन जाता है? फिक्स्ड पॉजिटिव आयन. सो वी कैन टू वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन टू अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन का बात कर रहे हैं, और भी अच्छा अप्रोक्सीमेशन है. इट्स नॉट दैट वी आर स्पीकिंग ब्लाइंडली, हम लोग बस हवा में तीर नहीं मार रहे हैं. वी कैन से दैट अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर में हम मान सकते हैं कि दिस कंडक्टर इज मेड अप ऑफ fixed positive ions and large number of free electrons. कोई भी कंडक्टर में हम मान सकते हैं टू सम रफ अप्रोक्सीमेशन दैट वी हैव फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस. फिक्स मतलब ये जब पॉजिटिव आयंस है ये मूव नहीं कर सकता. क्यों मूव नहीं कर सकता है? क्योंकि इसका मास बहुत बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुन लो भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच लेस देन द मास ऑफ द एटम. As a result of which the positive ions are almost immobile, मतलब वो अपना जगह से मूव नहीं कर सकता है, तो हम लोग बोलते हैं वो फिक्स पॉजिटिव आयन है. इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो वो इजिली मूव अराउंड कर सकता है कंपेयर टू द फिक्स्ड पॉजिटिव आयन. फाइन फाइन, ये बात समझ में आया? ओके. तो ये चीज हम फिर से यहाँ पे समझाए हैं कि अगर आपके पास एक क्रिस्टल लैटिस है और एक कंडक्टर है, वी कैन अज्यूम वी हैव free electrons, and these free electrons can readily move around within the material of the conductor, as a result of which our system or the entire conductor can be, or material can be assumed to be made up of free electrons and fixed positive ion. ये बात ही बार बार हम emphasize कर रहे हैं, fixed positive ions. मतलब जो हम लोग का जो मटेरियल है वो ये दोनों चीज से बना हुआ है, स्पेशली any kind of material. Fine. Any kind of material is actually made up of fixed positive ion and free electrons which can readily move around within the material of the conductor. ये सब electrons easily move around कर सकता है within the material of the conductor. Fine. Fine. चलो बढ़िया. अब आ जाते हैं यहाँ पर. अब सुनो एक बात. मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर. इस कंडक्टर में आपके पास क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा एंड फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस होगा. ओके. अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव करता रहेगा, रैंडम मोशन एग्जिबिट करेगा. रैंडम मोशन कहने का मतलब है कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा. मतलब कि रैंडम मोशन मतलब कि कोई नेट डायरेक्शन नहीं है. हम लोग क्या किए यहाँ पे? नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर. कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं अप्लाई किया गया है. मतलब कि हम लोग ने एक्सटर्नली इस एंड और इस एंड, मान लीजिए अगर इस एंड का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो इस एंड का पोटेंशियल भी है 10 वोल्ट. तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है मतलब कि कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा. बात समझ में आ रहा है? हम लोग ने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, दोनों जगह सेम पोटेंशियल 10 वोल्ट 10 वोल्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कंडक्टर जो मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है और फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा. रैंडम डायरेक्शन में मूव करने की वजह से यहाँ पर नो नेट डायरेक्शन, कोई जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहा है पर कोई डायरेक्शन नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है कि सारा इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे. सो नो नेट डायरेक्शन के होने की वजह से जो करंट हो रहा है, नेट करंट, वो जीरो.
करंट इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन इज जीरो। नेट करंट जीरो मतलब करंट इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट, स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट जीरो है। बात समझ में आया? ओके फाइन। देख लो इसी चीज को हम यहाँ पे अच्छे से लिख दिए आपके लिए। क्या बोला गया है? when no potential difference is applied across the ends of the conductor, that is there is no cell और बैटरी। मतलब कि याद है, the device which is used to maintain constant potential difference, वो क्या नाम दिया गया था? वो डिवाइस, the device which is used to maintain constant potential difference, तो क्या नाम दिया गया था? बैटरी। तो अगर हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं कनेक्ट किया है, इसका मतलब हमने कोई बैटरी नहीं कनेक्ट किया है। उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोग रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इन एनी डायरेक्शन, सो द नेट करंट इज जीरो। करंट इज जीरो, नेट करंट इज जीरो। फाइन। ओके, अब आते हैं आगे। अब बात सुनो, अब एक बात समझिए यहाँ से क्या हो रहा है, इसको समझ ले एक बार। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर ये एक कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर है जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस कंडक्टर का लेंथ एल है। अब क्या किया जा रहा है, हम लोग ने यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई किया है। मान लीजिए इसको दिया और इसको ऐसे दिया। जैसे बैटरी अप्लाई किए हो, मतलब क्या किए हो आपने, ये बड़ा साइन है, बैटरी का सिंबल है, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आपने सेल कनेक्ट किया, आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। और ये बड़ा वाला रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव पोटेंशियल, लोअर वाला रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव पोटेंशियल। इसका मतलब ये एंड ए एंड ये एंड बी अब सेम पोटेंशियल पे नहीं रहा। ये हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल पे और ये हो गया नेगेटिव पोटेंशियल पे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम लोग जो कहानी बोलते हैं कि हम मान सकते हैं कंडक्टर के अंदर फिक्स पॉजिटिव आयंस है एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब इस सारा इलेक्ट्रॉन्स है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, उसको इधर पुल करेगा, पॉजिटिव खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव टर्मिनल इसको रिपेल करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम लोग को पता है जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस तरफ। फाइन, समझ में आया? ओके, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इट स्टार्ट्स टू मूव, नेगेटिव टर्मिनल उस पर धक्का देगा कि दूर जाओ, पॉजिटिव टर्मिनल को अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है। फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम बी टू ए। पर जब ये बी टू ए मूव कर रहा है, इट विल नॉट मूव फ्रीली। ये फ्रीली नहीं मूव करेगा। होगा क्या कि ड्यूरिंग इट्स मोशन, सुन लो, ड्यूरिंग इट्स मोशन it will collide, the free electrons will collide with the fixed positive ions and also with the other free electrons. It will collide. क्या करेगा ये? कोलाइड करेगा। अब जैसे ही ये धक्का मुक्की करेगा दूसरा फिक्स पॉजिटिव आयंस एंड अदर फ्री इलेक्ट्रॉन से, होगा क्या कि वो ऑटोमेटिकली उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। वेलोसिटी कम होके वो रेस्ट पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। बट ड्यू टू एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी है, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स
उसके ऊपर वापस से फोर्स एक्ट करेगा, वापस से वो कोलाइड करेगा, एंड वापस से यही साइकिल रिपीट होता रहेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि वो फ्रीली नहीं मूव कर रहा है, बट कोलाइड करते करते जा रहा है, रुक रुक के जा रहा है, एकदम मक्खन की तरह। एकदम वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक एकदम मक्खन की तरह ऐसे नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है, वो ऐसे जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट मोशन। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट मोशन। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, एकदम ऊपर नीचे होके जा रहा है। आगे जा रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा है, यहां से यहां तक आ गया, बट ऐसे करके जा रहा है, ऐसे कभी उल्टा कभी ऊपर कभी नीचे कभी बाएं कभी दाएं, ऐसे कलिजन करते 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 ऐसे जा रहा है। आगे जा रहा है बट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ ड्रिफ्ट मोशन, ऊपर नीचे दाएं बाएं धक्का मुक्की करके जा रहा है वो आगे। फाइन। और ये जो धक्का मुक्की करके जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसी को कहा गया है रेजिस्टेंस। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन मिला इलेक्ट्रॉन को, इसी को कहा गया है रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा अच्छे से पढ़ के। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यही आपको पढ़ना है इसको, और कुछ नहीं है यहाँ पे, एकदम आसान है। सुन लो क्या बोला गया। When a cell is connected, potential difference is created across the ends of the conductor. Electron experiences force and are accelerated. Force लगा आगे बढ़ जाएगा, but as they move, they suffer collision. Collision word बहुत important है। किसके साथ? With the fixed positive ion and with other free electrons. Now, क्या होगा? collision के बाद velocity decrease हो जाएगा, they'll come to rest, but due to existing potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी है, मतलब एक टर्मिनल अभी भी पॉजिटिव है, एक टर्मिनल अभी भी नेगेटिव है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स आर अगेन एक्सेलरेटेड। इलेक्ट्रॉन वापस उसके अंदर जोश आएगा और वापस से वो दौड़ना शुरू करेगा, एंड द सेम साइकिल विल कंटिन्यू। वापस से दौड़ेगा, वापस कोलाइड करेगा, वापस से रुकेगा, फिर वापस से दौड़ेगा। तो क्या होगा? दौड़ेगा, रुकेगा, दौड़ेगा, रुकेगा, दौड़ेगा, रुकेगा, बीच में बहुत सारा कल्यूजन भी फेस करेगा। So the electrons do not move freely with increasing velocity, but there is a drift of electron from one end to another. This obstruction to the flow of electron is called resistance. बात खत्म। बात समझ में आया? और कुछ नहीं है यहाँ पर, हटाओ इसको। ओके, तो वही बात हम आपको बता रहे थे यहाँ पर कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द ड्रिफ्ट मोशन। जब इसके अक्रॉस हम लोग ने यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी कनेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है तो सीधा, एक सेकंड, हाँ हटाओ इसको। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो सीधा एक सिंगल पाथ में नहीं फ्लो करेगा ऐसे, बट क्या होगा जब यहां से स्टार्ट करेगा वो बहुत सारा कल्यूजन फेस करके ऐसे ऐसे कोलाइड करते 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 यहां तक जाएगा। समझ में आया? तो इसी को कहा गया है ऑब्स्ट्रक्शन। ये इस हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं जाकर ऐसे जा रहा है, इसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारा कल्यूजन कर रहा है। सो मेन प्रॉब्लम इज द collision। और किसके साथ कल्यूजन? कल्यूजन विद द फिक्स्ड positive ions and with other free electrons, other free electrons। बात समझ में आया? ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी बात को कहते हैं ड्रिफ्ट मोशन। इतना कुछ नहीं पढ़ना है, बस समझना है इसको। देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे, बस समझना है, समझ लो एक बार के लिए, बस पढ़ के समझ लो। ओके, डन डन। अब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पर आपको देख के समझना पड़ेगा बेसिकली कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कल्यूजन। एक कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ध्यान सुनो, एक कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कल्यूजन्स के ऊपर। अगर नंबर ऑफ कल्यूजन्स ज्यादा है, इन दैट केस रेजिस्टेंस विल आल्सो बी मोर। बात समझ में आया? if the number of collisions are more, resistance will also be more. If the number of collisions are less, the resistance will also be less. Fine, easy, easy। अब ये collision किसके साथ कर रहा है? कितनी बार बोले भाई? suffered by the free electron with the fixed positive ions, या फिर by the, oh sorry sorry spelling mistake है, छोड़ दो इसको, by the free electrons with another free electrons। क्लियर है?
अरे एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, समझ गए तुम लोग, चलो हाँ। ओके। हाँ, अब यहाँ पे देख लो, एक चीज देख लो, सिंपल सा बात है। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हम पूछना चाहते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होगा? मतलब कि जो आपका इनपुट फोर्स है, जो आपका इनपुट फोर्स है, वो मान लेते हैं कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा? आपको क्या लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? सोच लो, करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर करंट, खुद ही सोचो, अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, तो करंट क्या होगा? करंट क्या होगा सोचो खुद ही। ऑपोजिशन ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा? अरे भैया इतना मुश्किल है क्या बोलना? डिक्रीज कर जाएगा। एंड सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा, तो करंट ज्यादा होगा। दैट इज, हम बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है? ओके, ओके फाइन। क्या करें यहाँ पे, छोड़ दें और बता दे कुछ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। ओके, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ओम्स लॉ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। देखिए, ये जो पहला पॉइंट है, ये हम लोग पहले पढ़े हैं कि फॉर अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ करंट, अगर आप चाहते हो कि करंट आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे, so the two conductors must be maintained at constant potential difference। दो कंडक्टर्स के बीच में अगर पोटेंशियल, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, तब तक आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तब तक आपको फ्लो ऑफ करंट मिलेगा। फाइन फाइन। एंड सिमिलरली the resistance is the obstruction given to the flow of current, and that is, the current is inversely proportional to the resistance for a constant potential difference। ठीक है? तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं दैट इज, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और वाइस वर्सा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनटू आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बात समझ में क्या हुआ? एक सेकंड सुन, रुक जा रुक जा रुक जा। ओ भाई साहब, एक सेकंड रुक जाओ, कैंसिल। एक सेकंड ना, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं हम, अच्छे से करते हैं। सुन लो एक बार क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल्स टू साइन से रिप्लेस करें, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहा मेरा? यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा बाय करंट। और आपको क्या लगता है इस कांस्टेंट का नाम क्या होगा? इस कांस्टेंट का नाम क्या होगा? क्या चीज कांस्टेंट है इस सिचुएशन में? क्या चीज कांस्टेंट है? सोच के बोलो, इस सिचुएशन में क्या चीज कांस्टेंट है? क्या चीज कांस्टेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। बात समझ में आया? तो हम बोल सकते हैं ये जो कांस्टेंट है एक्चुअली में, ये जो कांस्टेंट होगा ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस v, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स v। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं R इज V बाई आई, और यहाँ से हम बोल सकते हैं V बाई आई इज इक्वल्स टू R, और V इज इक्वल्स टू आई आर। और इस स्टेटमेंट, ये जो रिलेशन है बिटवीन, ये जो रिलेशन है, सुन लो एक बार बस, ये जो रिलेशन है बिटवीन V आई एंड R, ये जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहा गया है ओम्स
लॉ। क्या कहा गया है? ओम्स लॉ। देखो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है, आई थिंक ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, यहाँ तक रखते हैं लोग, ठीक है। अब ओम्स लॉ से हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में शुरू किया जाएगा, नेक्स्ट उसमें शुरू करेंगे। फाइन, आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट लॉन्ग। पर देखो क्या किया, हम लोग कुछ ज्यादा पढ़े नहीं हम लोग यहाँ पे। क्या किया हम लोग ने बस समझा कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या है, उसका कॉज क्या है, और देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब? जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इस रिलेशन में ये जो यहाँ पे जो जब भी, एक बात सुन लो, जब भी आप लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को एक इक्वल्स टू साइन से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। और सिंस इस सिचुएशन में जो कांस्टेंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस कांस्टेंट की जगह हम लोग ने v लिख दिया। यहाँ से हम लोग ने देखा कि ये एक रिलेशन बना v इक्वल्स टू आई आर। इसको कहा गया है ओम्स लॉ। फाइन, फाइन, चलो ठीक है, ये भी खत्म करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। यहाँ पे कुछ जगह नहीं बचा मेरे थैंक यू बोलने के लिए, ये लिख दे रहा हूँ। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग।